ہم پڑھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 30واں باب اور 19ویں آیت۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی زندہ رہے اور تیری اولاد بھی۔ آمین۔ مقدس موسیٰ کو خدا نے بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی میں سے نکال کر لے آیا، تو وہ ساری اپنی خدمت گزار رہا تھا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہاں یہ خطاب کیا، یردن قریب تھا، دریا یردن۔ تو یردن کے مشرق میں وہ مواب کے اوپر یہ موسیٰ نے خطاب کیا اور یہ الفاظ کہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں نے اپنی خدمت کے دوران تیرے سامنے زندگی کو بھی رکھا اور موت کو بھی، لعنت کو بھی رکھا اور برکت کو بھی۔ اب یہ تجھ پہ منحصر ہے کہ تو زندگی کا انتخاب کرتا ہے یا موت کا، برکت کا انتخاب کرتا ہے یا لعنت کا۔ لیکن اس نے آگے مشورہ بھی دیا، خالی چھوڑا ہی نہیں ہے، مشورہ بھی دیا۔ آخر میں ایک ہی کہہ رہا ہے، بس پڑھیے یہاں سے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ کہتا میں نے تو تیرے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، اب یہ تم پہ ہے کس کو چنتے ہو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے زندگی کو چنو۔ یہ موسیٰ نے کہا۔ اب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے پیغام میں زندگی اور موت دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا، برکت اور لعنت دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا، چناؤ آپ پہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں کچھ چننا پڑتا ہے، دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم چرچ میں آنا شروع ہوئے، جب سے بائبل پڑھنا شروع ہوئے ہیں ہم لوگ، جب سے ہم نے خدا کو قبول کیا ہے، اور اگر نہیں بھی کیا جب سے چرچ میں آ رہے ہیں، ہر روز آپ کو چناؤ کے بارے میں، انتخاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چن لو جس کو چننا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھا چناؤ نہیں کرتے، بعض اچھا چناؤ کرتے ہیں۔ دو راستے سامنے ہیں، آپ اچھے کا چناؤ کیجیے گا، لیکن بہت لوگ غلط چناؤ بھی کرتے ہیں۔ بائبل اچھے اور برے چناؤ کے ساتھ اور ان کے واقعات کے ساتھ بھری پڑی ہے، بہت سی کہانیاں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھوں گا بیڈ چوائسز کے۔ بائبل میں برے انتخاب، برا انتخاب، جنہوں نے موت کا انتخاب کیا، میں ان کی مثال دوں گا۔ جنہوں نے لعنت کا انتخاب کیا، حالانکہ دونوں سامنے تھے، ہونا تو چاہیے تھا زندگی کا انتخاب کرتے، موت کا انتخاب کیا، ہونا تو چاہیے تھا یہ برکت کا انتخاب کرتے، لعنت کا انتخاب کیا۔ تو بیڈ چوائسز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بیڈ چوائس جو ہے وہ ہے آدم اور حوا کی کہانی۔ خدا نے آدم سے کہا دیکھ یہ سارا جو باغ عدن ہے تیرے پاس ہے، سارے درخت جو تیرے سامنے ہیں، جس درخت کا پھل کھانا چاہے کھا لے، لیکن جو درمیان میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، اگر تم نے کھایا تو تم مرا، لیکن اگر تم میرے حکم کو مانے اور اس پھل کو نہ کھائے تو اب تک زندہ رہے گا۔ آدم نے کس کا انتخاب کیا، زندگی کا یا موت کا؟ بتائیے مجھے۔ اس نے اپنی بیوی کو ہوا کو لازمن کہا ہوگا، لازمی کہا ہوگا کہ ہوا بات سن، شاید اس نے کہا مائی ڈیئر، مائی سویٹ ہارٹ، میری پیاری، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں خدا نے میری زندگی میں آنے سے پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، بتا دیا تھا آدم نے ہوا کو۔ اور شیطان جو ابلیس ہے، جو لوسیفر ہے، جو پرانا سانپ ہے، جس کا کام بہکانا ہے، جس کا کام خدا کے خلاف شک پیدا کرنا ہے، وہ ہوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا خدا نے تمہیں درختوں کے تمام درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ اب دیکھیں شیطان کیسے ٹویسٹ کرتا ہے، کیسے توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے۔ اس نے
से शक करने वाली बात थी, क्या ऐसा ही है? और हवा को तो पता था कि खुदा ने मना किया है। अब खुदा ने कहा था जिस रोज तुमने खाया तुम मरा। भूल गई कि मौत आ जाएगी अगर खुदा का हुक्म ना माना। उसने फल खाया, आदम को भी दिया, और गोया उन्होंने जिंदगी का इंतखाब नहीं किया, मौत का इंतखाब किया। किसका इंतखाब किया? This was very very bad choice in the world. ये पहली बैड चॉइस थी जो उन्होंने की। ये अब्दी मौत है, ये ऐसी मौत है जिसमें जिस्म तो जिंदा है लेकिन रूह खुदा से जुड़ा है। असल में मौत की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मौत की डेफिनेशन है, जैसे हम अपने जिस्म की बात करता हूं, इंसानी जिस्म में से रूह का अलग हो जाना मौत है, और खुदा से इंसान का अलग हो जाना रूहानी मौत है। बस आदम और हवा रूहानी तौर से मर गए। उन्होंने मौत का इंतखाब किया, लानत का इंतखाब किया। लानत का कैसे? क्योंकि खुदा ने लानत दी और कहा तेरे सबब से जमीन भी लानती हुई, जमीन पर लानत ही लानत। और उसके बाद आदम की नस्ल होते हुए तमाम इंसान बनेगा। अब एक और बात सुनिए, कोई ये सवाल कर सकता है कि गुनाह तो आदम और हवा ने की है, हम कैसे गुनहगार हो गए? एक आदम के गुनाह से तमाम दुनिया गुनहगार हो गई। आपने गुनाह नहीं किया, आपने खुद गुनाह नहीं किया, आदम के गुनाह के बायस आप गुनहगार हो गए। आदम और हवा तमाम दुनिया की नुमाइंदगी करते हुए मौत का इंतखाब करके जहन्नम में चले गए, लानत में चले गए। उन्होंने मौत का इंतखाब करके जिंदगी को खो दिया। दिस वाज वेरी वेरी बैड चॉइस। लेकिन आप फिर कहेंगे हमारा क्या कसूर, हम उनकी नस्ल में से हैं। वो ऐसे नुमाइंदे के तौर पर हम गुनहगार कहते हैं। एक आदमी के गुनाह से तमाम दुनिया गुनहगार हुई। एक आदमी यानी हवा और आदम के गुनाह के बायस तमाम दुनिया गुनाह में गिर गई, तमाम दुनिया लानत के नीचे आ गई, मौत के नीचे आ गई, और हम उसी का हिस्सा है। दूसरा चुनाव आपके सामने रखना चाहता हूं, एक और चुनाव, और ये दरअसल दूसरा नंबर के हिसाब से भी दूसरा है। आदम हवा के बुरे इंतखाब के बाद ये एक और बुरा इंतखाब, और ये बुरा इंतखाब जो है कायम ने किया। कायम, आदम के दो बेटों का जिक्र है। कौन कौन से बेटे, नाम बताइए? कायन और, हेलो बोलिए, कायन और खुदा के सामने दोनों कुर्बानियां लेके गए, हदिये लेके गए। खुदा ने हाबिल के हदिये को कबूल किया। अब ये तो खुदा ने किया है, खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और कायन की कुर्बानी को रद्द किया। तो वो खुदा के खिलाफ तो हो सकता था, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ हो गया। उसके अंदर हसद आ गया भाई के खिलाफ। आज भी ये होता है, आपके किसी रिश्तेदार के पास कार आ जाए, आपके किसी दोस्त के पास, किसी हमसाये के पास अच्छी लाइफ उनकी आ जाए, अच्छा लाइफ स्टाइल आ जाए, आप हसद से बढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। और चलते 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 ऐसा चलते हैं कि अपनी जिंदगी को अजाब में डाल देते हैं, हसद से भर के। तो कायन हसद से भर गया, खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल की। हम भी कभी कभी ये कहते हैं खुदा ने मुझसे क्यों इतना सारा सरफराज किया, मुझे क्यों नहीं किया, और फिर अपने भाई से हसद करते हैं उसने ऐसा ही किया। और खुदा ने उसको वार्निंग दी थी, जब खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया तो साथ एक वार्निंग दी। वार्निंग क्या थी? ये वार्निंग थी पैदाइश 14 बाब 6 में आए, देखिए जरा। और खुदा ने कायन से कहा तू क्यों खतरनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है और तू उसके लाने है। खुदा ने कहा गुनाह दरवाजे पे दबका बैठा है, तू गुनाह कर सकता है, हसद से तू भरा हुआ है, कहीं अपने भाई का कदर ना कर देना, लेकिन तू बाज आ। आखिर में खुदा ने क्या कहा, लेकिन तू उस पर गालिब आ, गुनाह में गालिब आ। ये गुनाह में गालिब नहीं आया, हसद से भरा हुआ था, इसने मौत का इंतखाब किया, जिंदगी
को इसने बस कुछ डाला और अपने भाई को कत्ल कर डाला। ये जमीन पे पहला कत्ल। दूसरा बुरा इंतखाब, पहला कत्ल, एक उसने अपने भाई को कत्ल किया, भाई को तो कत्ल किया उसने और उसकी तो जिस्म को उसने कत्ल किया, लेकिन कायन रूहानी तौर से भी मर गया, जिंदगी से महरूम हो गया, गुनाह में गिर गया। गुनाह का नतीजा मौत है। वो तो हाबिल तो जिस्मानी तौर से मरा, कायन रूहानी तौर से भी मर गया। बुरा इंतखाब और फिर लानत उसको मिली, लानत, खुदा ने उसको लानत दी। तो मूसा ने कहा बनी इसराइल से, आज तेरे सामने जिंदगी को रखता हूं, मौत को भी, बरकत को रखता हूं, लानत को भी। आदम ने गलत इंतखाब किया, आगे कायन ने भी गलत इंतखाब किया और जमीन पे वो आवारा हो गया, खाना खराब हुआ, उसको सजा मिली कि जमीन तुझे अपना हासिल नहीं देगी, तू हाथ जोतेगा और फल नहीं काटेगा, तुझे जमीन फसल नहीं देगी। ये दूसरा इंतखाब। एक और तीसरा इंतखाब, तीसरा गलत इंतखाब, मौत का इंतखाब, लानत का इंतखाब, और यह लूत। ये लूत की स्टोरी में ये है। लूत और उसकी बीवी और 3 बेटियां और 3 दामाद। कितने लोग हैं? लूत, उसकी 2 बेटियां, कितने हो गए? 3 और 2 दामाद, कितने हुए? 5 हो गए, और एक लूत की बीवी। इतने लोग। अब गौर से सुनिए हुआ क्या। पहले नंबर पे तो लूत ने इंतखाब ही गलत किया था। जब अब्राहम ने कहा कि लूत जो इलाका चुनना चाहता है चुन ले, आजाद है, ये सारी ममलकत सारी जमीन मेरे इख्तियार में है, उसने वो इलाका चुना जो सदूम और अमोरा का इलाका है, तराई का इलाका। पहले तो उसने गलत इंतखाब किया लूत ने, और फिर गलत इंतखाब करके ऐसी जगह चला गया जहां पे होमोसेक्सुअलिटी थी, जहां हम जिनसियत थी, हम जिनसियत का गुनाह यहाँ पे कूट का भरा हुआ था, लोग बदी से भरे बने, उसे इंतखाब गलत किया, गलत इंतखाब किया। कभी वो तो गलती हुई, आगे देखिए, खुदा नहीं छोड़ता। आदम और हवा ने गुनाह किया, आज खुदा उसके पीछे है, वो नहीं छोड़ता, वो चाहता है वापस आए। कायन ने बुरा किया, खुदा आज चाहता है कि कायन जैसे लोग वापस आ जाए। या लूत और उसकी बीवी, इन्होंने गलत इंतखाब किया, सदूम और अमोरा में आ गए, लेकिन खुदा पीछे लगा रहा। सदूम और अमोरा के लोग गुनाह में इस कदर पड़े थे कि खुदा ने कहा मैं दोनों शहरों को आग से जला दूंगा, नस्ल आतिश कर दूंगा कि तुम्हारी आंखों के सामने जल जाएंगे। और फिर क्या हुआ? खुदा ने अपने फरिश्ते भेजे, 2 फरिश्ते लूत के घर। जब 2 फरिश्ते गए, उन्होंने कहा भागो, जल्दी करो, पहले तुमने गलत इंतखाब किया, तुम सदूम और अमोरा में आए, अब ये नस्ल आतिश होने वाला है, आग और गंधक नाज़िल होगी और ये दोनों शहर जल जाएंगे। भागो, जिंदगी का इंतखाब करो, और अगर तुम पीछे आएगी तो मौत का इंतखाब करोगे। लूत और उसकी बीवी और दोनों बेटियों ने बड़ी जल्दी की। असल में जल्दी कराने वाले फरिश्ते थे और ये निकल आए, लेकिन सुनने 2 लोगों का हाल। लूत की दोनों बेटियों के हस्बैंड, लूत के क्या लगे? दामाद, उन्होंने मजाक उड़ाया। तो दोनों ने, भाइयों ने लिखा है, मजाक उड़ाया, परवाह नहीं की। लूत उनके पास गया, हाथ जोड़े, कहा मेरी बेटियों के आप हस्बैंड हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मौत का इंतखाब करो, तुम जिंदगी में आ जाओ, आओ भागो हमारे साथ, शहर को आग लगने वाली है। उन्होंने मजाक उड़ाया अपने ससुर का, अपनी सास का। आज भी बहुत से लोग जिनको कुरान सुनाया जाता है, तौबा की तालीम दी जाती है, निजात की तालीम दी जाती है, कहा जाता है यीशु को कबूल करो, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्ठे उड़ाते हैं, तमस्कुर उड़ाते हैं, खुदा के लोगों खातों की अक्सर बेइज्जती भी करते हैं। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। दामादों ने शर्त की, लेकिन क्या हुआ? फरिश्तों ने कहा कोई बात नहीं, जो है उनको लेके भागो। और लूत और उसकी दोनों बेटियां जो है वो निकली और बीवी भी, और ये वहां से निकल के बाहर आ गए। अब सुनिए, अच्छा इंतखाब किया, क्या ख्याल है? निकल आए, अच्छा इंतखाब किया, लेकिन मैं तो बैड चॉइस बता रहा हूं। फिर बैड चॉइस इसमें क्या है? एक तो वो 2 मवाद, उन्होंने बुरा इंतखाब किया, और फिर सुने, खुदा ने कहा अब तुम निकले तो हो, तुमने तौबा तो कर ली है, गुनाहों से बख्शे, तुम्हारे गुनाह तो बख्शे गए हैं, लेकिन याद रखना वापस ना मुड़ के देखना।
गए हो, वापस मुड़ के ना देखना। जा रहे थे, दूध की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और वही नमक का सतून बन गया। आज ऐसा नहीं होता। खुदा ने कह दिया पीछे मुड़ के ना देखना। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं आपको कुछ नहीं होगा। उनके खुदा दांत नहीं तोड़ता, उनके खुदा पसलियां नहीं तोड़ता, लोहे का डंडा वाले हाथ में नहीं है, फजल का दौर है। लेकिन अगर आप तौबा के बाद, निजात के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर नमक का सतून बन जाएगा। लोगों की नजर में भी, खुदा की नजर में आप लानत के नीचे आ जाएंगे। तो इन्होंने गलत इंतखाब किया, सदूक और अमूरा नजर आतिश हो गए और दूध की बीवी नमक का सतून हो गई। लेकिन बाकी दो जो है दूध और उसकी दोनों बेटियां सही सलामत चले गई। अच्छा इंतखाब किया। तो फिर किसका इंतखाब करेंगे? मौत का या जिंदगी का? हेलो, जिंदगी का या मौत का? बोलिए, किसका इंतखाब करेंगे? बरकत का या लानत का? जी हाँ, हमारे सामने दोनों रास्ते हैं। खुदा के सच्ची ने एक छोटी सी आयत दी है, बड़ी छोटी आयत, अब सबको भी याद हो जाएगी। पर सुनना चाहते हैं? बाइबल में एक बहुत छोटी आयत है, चंद लफ्ज पढ़े। लूका की जी इसका 17वां बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़े। क्या है? तो पढ़ सकते, ऊंची आवाज से पढ़े, सामने देखें। 1 2 3। कितनी छोटी आयत है। इस छोटी सी आयत में यीशु मसीह ने एक बड़ा पैगाम दिया है। आयत छोटी है, कितने अल्फाज हैं? 1 2 3 4 5 6 लफ्ज हैं। छोटी आयत, इन छोटे से चंद लफ्जों में एक बड़ा पैगाम है। दूध की बीवी को याद रखो। अगर गुनाह से बाज आए, अगर तौबा कर ली है, निजात पा ली है, पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं, फिर गालियां, फिर झूठ, फिर नशाबाजी, फिर वही अहमजोई, फिर वही पुराने काम जो इस तौबा के वक्त आपके खत्म हो गए थे, अगर वापस उसमें चले गए हैं, नमक का सतून बन जाएंगे, मतलब जहन्नुम में चले जाएंगे, अदालत होगी। दूध की बीवी को याद रखें। एक कोर्स मेरे साथ करके गाते हैं, जो गा सकते हैं। संडे स्कूल में मैंने सीखा था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। गाइए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना जाए। गाइए, घर कोई मेरे साथ ना जाए, घर कोई मेरे साथ ना जाए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। इकरार करें, वापस नहीं जाना, वो बुरा इंतखाब होगा। तौबा करके निजात पाके वापस मुड़ते हैं, बुरा इंतखाब है। कहें पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। अब मैं आपके सामने अच्छी एग्जाम्पल करूंगा। ऐसे इंतखाब जिसमें मौत को रद्द किया गया, जिंदगी का चुनाव किया गया, लानत को रद्द किया गया, बरकत का चुनाव किया गया। और वो मेरे सामने एक कैरेक्टर है बाइबल का, रूथ। कितनों ने रूथ का नाम सुना है? रूथ नोमी की बहू, यीशु मसीह के बिस्मिल्लाह में रूथ का नाम है, बदी की जीत के पहले बाप में। रूथ के बारे में आपने सुना होगा बहुत। ये बैतलहम में रहने वाले थे। कौन कौन सुनिए? नोमी और उसका खामन एलीमेलेक और उसके 2 बेटे बैतलहम में रहते थे। वहां माल पड़ गया। क्या है? इन्होंने फैसला किया चले मोआब को चलते हैं। अब मोआब वो इलाका है, मोआबी हमेशा इस्राएल के खिलाफ थे, हमेशा इस्राएल के खिलाफ जंग करते थे। इन्होंने मोआब का इंतखाब किया, चले गए। वहां दोनों बेटों की शादियां हुई। एक बेटे ने शादी की एक लड़की से, उसका नाम था उर्फा। दूसरे बेटे ने शादी की, उसका नाम था रूथ। फिर दोनों बेटे मार गए, मानत, दोनों बेटे मार गए।
اب نومی کے اندر ایک اچھی خواہش پیدا ہو، کہتی یہاں تو ہم لعنت میں آ گئے ہیں، مواب ہم نے بیت لحم کو چھوڑا، داؤد بادشاہ کے شہر کو چھوڑا، برکت والے شہر کو چھوڑا، بیت لحم کا روٹی کا گھر، چلے کال پڑ گیا، پھر کیا ہم نے غلط انتخاب کیا اور یہاں میرے بیٹے بھی مر گئے، ہاں اور ابھی ملک بھی مر گیا، شور بھی مر گیا۔ نومی نے کہا لوط سے اور نومی عرفہ سے کہا بیٹیوں سنو، اگر میں دوبارہ شادی کروں اور پھر میرے بیٹے پیدا ہوں، کیا انتظار کرو گی اتنی دیر تک کہ میرے بیٹے بڑے ہوں گے، ان کے ساتھ شادی کرنے کا انتظار کرو گی؟ بہتر ہے واپس چلی جاؤ، میں تو جا رہی ہوں واپس بیت لحم میں تو برکت والے گھر میں جا رہی ہوں، میں تو روٹی کے گھر میں جا رہی ہوں، میں نے پہلے غلط انتخاب کیا، اب میں واپس بیت لحم کو جا رہی ہوں، تم رہ جاؤ یہیں پہ، تم یہی رہ جاؤ، تم کہاں میرا انتظار کرو گے کہ میں اور دو بیٹے پیدا کروں، ان سے شادیاں کروں؟ تو روت کا جواب بڑا خوبصورت تھا، روت نے یہی کہا اے نومی، اے میری ساس، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، جہاں تو زندہ رہے گی میں زندہ رہوں گی، اور تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا، میں مواب کے دیوتاؤں کو چھوڑتی ہوں، میں مواب کے بتوں کو چھوڑتی ہوں، میں ابراہیم والے اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ بس کیا ہوا، عرفہ تو پیچھے رہ گئی، لیکن روت جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ اچھا انتخاب کر کے، زندگی کا انتخاب کر کے، برکت کا انتخاب کر کے بیت لحم میں آ گئی۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ کتنے آج جو وعدہ کرتے ہیں کہ میں رسولہ پلا پڑھیا ہے، میں چھاڑ کے کبھی نہیں جاتا، برکت کو چھاڑ کے نہیں جانا، موت سے نہیں جانا، نومی کی طرح اور روت کی طرح اچھا فیصلہ کریں، اچھا فیصلہ کریں، اچھا انتخاب، عرفہ کی طرح نہیں۔ آج دنیا میں عرفہ کی طرح کے لوگ ہیں، اسی کلام سنا کے تھک جاتے ہیں، توبہ کی تعلیم، نجات کی تعلیم، پانی میں بپتسمے کی تعلیم، میں تو تعلیم دے کے نکلو اور پیچھے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جو بڑھواتا ہے اور واپس جاؤ تو ہم تعلیم دیتی سی، توبہ دی، پانی میں بپتسمے دی، وہ کہتے نہیں ساڈا بہو آیا سی انہوں نے دسیا ہے غلط ہے، او بھائی ہم نے بائبل میں سے بتایا، ہم کو سنا نہیں بتایا، وہ تو بائبل میں لکھا ہی نہیں۔ روت کی مثال آپ کے سامنے ہے، عرفہ نہ بنے، روت بنے اور اپنا قدم بیت لحم کی طرف لے کے چلے، روحانی طور سے زندگی کی طرف چلے۔ ہاللیلویا۔ روت کے بارے میں بتاؤں، اس کی برکتیں، اس نے بوئز سے شادی کی، اس سے عبید پیدا ہوا۔ روت نے آ کر کس سے شادی کی؟ بوئز سے، اس سے کون پیدا ہوا؟ عبید پیدا ہوا۔ عبید جو ہے داؤد کا دادا ہوا، عبید سے یسی پیدا ہوا، یسی سے داؤد پیدا ہوا اور داؤد کی نسل سے یسوع مسیح۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اے ابن داؤد، اسی طور پر ہم کہتے ہیں یسی کے تنے سے کمپل یسوع مسیح۔ تو روت جو ہے یہ دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح کی گرینڈ مدر بن گئی، اس یسوع کے نسب نامے میں آئی۔ کہاں نانک سے نکل کے آئی، کہاں یہ بت پرستوں میں سے نکل کے آئی، صرف نومی کے ساتھ آئی اور یسوع کے نسب نامے میں شامل ہوئی۔ ہاللیلویا۔ ہم کسی کھانے میں نہیں تھے، ہمارا کوئی شمار نہیں تھا، ہم گنہگار تھے، تھینک یو، ہم گنہگار تھے، کبھی نہیں تھے، کوئی امت نہ تھے، کوئی قوم نہ تھے، ہمارا کوئی شمار نہیں تھا، لیکن یسوع کے فضل سے، اس کے نام کے وسیلہ سے ہم شاہی قائدوں کا فرقہ بن گئے۔ ہاللیلویا۔ ایسی امت بن گئے جو خاص امت ہے، جو یسوع کے نام سے چنی ہوئی ہے اور ہمارا نام روت کے ساتھ کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ مواب میں واپس نہیں جانا، عرفہ نہیں بننا، روت کی طرح آگے بڑھتے چلے جاتا ہے۔ ایک اور کیریکٹر نئے آدم سے، اچھا انتخاب۔ خدا یسوع مسیح اس زمین پر جب خدمت کرتے تھے، تقریباً 3 سال خدا یسوع مسیح نے زمین پر بنا دی تھی، موت سے کیے، بیماروں کو شفا دی، تمثیلوں میں کلام سنایا اور نجات کی خوشخبری دی، اور یسوع کی شہرت تمام دور و ریز میں پہنچ گئی۔ پتہ چل گیا کہ کوئی ناصرت سے بھی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ ایک ہے جو ناصرت سے آیا ہے، ایک ہے جو جرمنی میں پیدا ہوا، ایک ہے کوئی آیا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور یہ بات کرتے کرتے، سنتے سنتے یہ بات زکائی کے کانوں تک پہنچی۔ زکائی ایک بہت بڑا آفیسر تھا، یہ رومی حکومت کی طرف سے وصول لینے والوں کا سردار تھا، یوں کہہ لیں ٹیکس کلیکٹرز کا
ये सुपरिटेंडेंट था, उसको पता चला कि यीशु मसीह हमारे शहर में आ रहा, लेकिन कद छोटा था, छोटे कद का था, यीशु को देख नहीं सकता था, और फिर अपने घर से निकलकर वो भागकर यीशु का पीछा भी नहीं कर सकता था, उसको देख भी नहीं सकता था, इतना छोटा सा, टिड्डा सा कह रहे, छोटा सा कद, और यीशु को देखने की ख्वाहिश कितनी बड़ी उसके अंदर। लोग मजाक उड़ाते तो उड़ाएं, वो जिस्मानी तौर से कद में छोटा है, रूहानी तौर से उसका कद हमारे कद से बढ़ गया है। हालेलुया, यीशु को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, आज मैं मिल के जाऊंगा, और फिर उसको पता चला यीशु किस रास्ते को जाने को है, भीड़ में तो जा नहीं सकता था, शायद कदमों में लोगों के वो कुचला जाता, आगे से गया, और जहां से यीशु ने गुजरना था वहां दरख्त के ऊपर चढ़ गया, और ऊपर से देखने की ख्वाहिश की यीशु को देखने के लिए, और यीशु वहां से गुजरा, उससे कहा ज़काई नीचे आ जा, मैंने तेरे ईमान को देख लिया है, देख नीचे आ, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है। ज़काई ने एक बेहतरीन इंतखाब किया यीशु को मिलने के लिए। आप में से कितने हैं जो कहना चाहते हैं मैं यीशु को देखना चाहता हूँ? आज कितने हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? ज़काई की तरह अच्छा इंतखाब, और सिर्फ यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई, वो अपने घर यीशु को ले गया, यीशु की दावत की, खाने पकाए, और टैक्स के जो जितने ऑफिसर थे उनको भी अपने घर में दावत दी, और सबके सामने खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी पुरानी जिंदगी खो गई, आज से मैं नई जिंदगी बसर करूंगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, मेरी जिंदगी बसर करनी शुरू, गुनाह को छोड़ दिया, बदी को छोड़ दिया, दुनियाओं में तरक दिया, उसी का पैरोकार हो गया, और उसका नाम किताबे याद में लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है। अच्छा इंतखाब कीजिए। और अभी यीशु को कबूल करें, जबर नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मूसा ने क्या कहा? मैं खुदा को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाकर तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी खिदमत के बारे में बता रहे हैं, मैंने जिंदगी को भी तुम्हारे सामने रखा, मौत को भी तुम्हारे सामने रखा, बरकत को भी रखा, लानत को भी रखा, चुन लो जिसको चुनना है। लेकिन उसने ये भी कहा मैं चाहता हूं जिंदगी को चुन लो, मैं अपने सामने मिसालें रख रहा हूं, अच्छी मिसालें चुन ले। और अभी यीशु को दिल दे, अभी देर नहीं हुई, अभी देर नहीं हुई, tomorrow never comes। कोई वक्त में डरा नहीं रहा, लेकिन मौत तो मौत है, डरा नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो किताब कलाम में एक आयत लिखी है, और वो आयत है, पढ़िए, दूसरा ग्रंथियों उसका छठा बाब उसकी दूसरी आयत, जो पढ़ सकते सब मेरे साथ करके पढ़ो ऊंची आवाज में, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की। आगे क्या है? देखो अब कबूलियत का वक्त है, बोलिए देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है, आज निजात का दिन है, आज कबूलियत का दिन है, कल का कुछ पता नहीं। अगर आप कहें ओके अभी तो मैंने बड़े गुनाह करने हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैंने पैसा कमाना है, अभी तो मैं जायज मुनाफा कमाना है, अभी तो मैंने फला गुनाह करने हैं, फिर यीशु को कबूल करूंगा, क्या पता क्या हो जाए, आज क्या हो जाए, ये पैसा यही रह जाएगा, ऊंचे महल चुबारे तेरे औरता नहीं मर लेने में। आज यीशु को कबूल करे, गुनाह से बाज आए और अच्छा इंतखाब करे, अच्छा इंतखाब करे, तब्दील होने के लिए अच्छा बुरा चुनाव आपके सामने, क्योंकि मैंने भी जिंदगी और मौत आपके हाथ में रख दी है, मुझे आपसे प्यार है, मैं कहता हूँ जिंदगी का इंतखाब करूं, यीशु को कबूल करना। यीशु ने स्लीप पर लहू बहाया, किस लिए? मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। यीशु ने स्लीप पर अपनी चाह दी, यीशु के हाथों और पांव में कील ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, कुचला गया, क्रश, he was crushed। इसलिए ताकि यीशु को मार के खुद मौत का मजा लेके आपको मौत से निकाल दे, आपको हम कह रहे जिंदगी में इंतखाब करें, आपको कह
لیکن یسوع نے کیا انتخاب کیا؟ بولیے آپ کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ مزید زندہ رہنے کا یا موت کا؟ کس کا انتخاب کیا؟ بولیے یسوع نے آپ کے لیے میرے لیے موت کا انتخاب کیا تاکہ ہم زندگی میں جائیں۔ وہ خود مر گیا، خود موت کا مزہ چکھا، خود موت کا انتخاب کیا، خوشی سے اسے اپنی ہماری نجات کے لیے جان دی تاکہ وہ آدم جو گناہ کے باعث باغن سے نکال دیا گیا تھا واپس خدا کے پاس آئے۔ یسوع نے انتخاب کیا، موت کو چنا، اچھا انتخاب، کس لیے؟ تاکہ ہم اچھا انتخاب کریں، زندگی کا انتخاب کریں۔ اگر توبہ کر لی ہے تو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں لوط کی گری کی طرح پیچھے مڑ کے نہیں چلنا، آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر نہیں کی تو اچھا فیصلہ کریں، زندگی نہیں کریں، روح کی طرح اچھا فیصلہ کریں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔